Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet, and we are back with our Wednesday session. And I welcome all the guests and all of our regular participants. And I know some people would be joining in a bit late, which is perfectly fine. Yes, welcome to the session, and let's have some people share. We have been conducting these programs since the last 5 years, and what we are going to cover today is quite in line with what we have done in the last 2-3 sessions. Yes, so we looked at the life of a Jivan Mukt. That means the life of a enlightened person. How does he live? And this is also, we can take some hints from the teachings of the Bhagavad Gita, where Lord Krishna is teaching Arjuna what is the life of a Jivan Mukt. एक जीवन मुक्त का जीवन कैसा होता है? So we had discussed that. Then we saw journey of ego consciousness to soul consciousness, which means देह भाव से आत्म भाव की तरफ जाने का जो जर्नी है, that is what is our spiritual journey. So we talked of human love to divine love. Yeah, the journey of human love to divine love, we saw that. So we saw different shades of love that a human being can experience. And we also saw the consciousness movement, the 4 levels of movement of the consciousness, which is starting from Pashuta, then to Manavata, to Devata, and then Divyata. So we saw that, right? Then we talked of worry or anxiety to peace, eternal peace. We talked about that. And today we are going to talk on from pleasure to bliss. Essentially, we are talking of the journey from the ego consciousness to the soul consciousness. Because we are embodied souls, we are souls traveling in this body. That's what I would say. Yes. So we are a soul having a body. So we are embodied souls, and our journey is to raise our consciousness from tamas to the higher level of rajas, to the higher level of sattva, and then moving on to the journey of nirgun. So that is what the raising of consciousness means. That means, in short form, I say that TRS, tamas, rajas, and sattva. So going beyond these 3 gunas and becoming nirgun. So that is the journey of the soul. Yes, right. So we talked of the movement from the duality to the non-duality. Because world that we are living in, जिस पृथ्वी लोक पे हम हैं, मृत्यु लोक में हम जी रहे हैं, यहाँ पे द्वैत है. यहाँ पे जीवन का हर एक अनुभव जो है वो द्वैत में आधारित है. तो सुख दुख, pleasure, pain, right, wrong, good, bad, we are caught in this Maya. The duality is Maya, and the soul journey is to raise your consciousness to transcend this duality, transcend this Maya, and then become non-dual consciousness, which is the highest level of consciousness available for the human being. And as we increase our or raise our हमारी चेतना का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, as we raise our consciousness to higher levels, our productivity and effectiveness in life will keep on improving. So this is not about past life, this is not about future life. We are talking of this current life. Can I live a life with highest level of productivity and effectiveness and raise my consciousness to the higher levels and be free from all suffering, be free from all fears, be free from all karma, be free from all bondages, free from all negativities? That is the purpose of life. To live a life which I love to live. Correct? तो इसके लिए क्या जरूरी है? अपनी चेतना का स्तर हमको कैसे उठाना है? That is the journey we are in. And to go beyond our basic, you can say, habits or sanskars of tamas and rajas, because these are viruses which are actually hampering or stopping our raising of consciousness. Yes. So that is the topic we are on. And today's topic is from the journey from pleasure to bliss. So first let us look at what is pleasure and what is bliss. So everybody has seen this topic. जिन्होंने ये
आज इस प्रोग्राम में आए हैं, obviously you have clicked on a link and come here, so the link was very clear. Today we are going to talk on pleasure to bliss. So what is your idea of pleasure in your life, and what is the idea of bliss in your life? How do you differentiate pleasure and bliss? So let's have some people share. What is your understanding of what is pleasure and what is bliss? We will start with this basic question, and then as we go on, we will dwell into the depths of wisdom, which will enable us to gain insights and transform our aspects of life. कौन बोलना चाहेंगे? Unmute yourself, you can raise your hand and you can speak. Your understanding of what is pleasure related to your life and what is bliss related to your life. Yes, Lakshit ji, go ahead. Yeah. So pleasure is something that is bought to give you a temporary happiness. Okay. Bliss is the thing which is never bought, cannot be purchased. It is experience with your bhakti and with your karam yoga, Okay. how much kriya you can do and how much inwardly you can focus within your soul. Okay. Anything else you want to add? Sir, you add. Okay, that's fine. So that's perfect. Let's acknowledge Lakshit ji. Lakshit ji, yeah, good. That's a good understanding. So pleasure is something which is temporary and bliss is something which is eternal, right? And bliss is our essential nature of the soul, and pleasure is normally experienced when you are in your ego consciousness. So that is the basic difference. Also, pleasure is dependent on the outside situations. Pleasure होगा तो बाहर की situation पे वो dependent होगा. Bliss is independent of the situation. So this is one way to understand what is pleasure and what is bliss. So very good understanding. Lakshit ji, good. Let's have some more people share. What is your idea of pleasure and bliss in your life? Look into your life and say, when did you experience pleasure? And if you want to label it as joy or happiness or whatever, what is your experience of pleasure and what is your experience of bliss? If it is conditional, it is pleasure. If it is unconditional, independent of situations, independent of people, independent of things, then it is eternal, and that is bliss. So let's have some more people share. Lakshit ji, you can you have a raised hand, so you can lower that. Fine. Yes. Who else? Who else wants to share? Sushil Jain ji, Jyoti ji, welcome. Baljinder ji, welcome. Tarun Bhadwar ji, welcome. Yes. So your idea. Hanji, 1+. Sorry, I couldn't connect with your name. That's fine. Go ahead. आप म्यूट पे हैं मैम, आपको अनम्यूट करना होगा. यस सर, मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस सेशन में आई हूँ. मुझे किशन जी ने रेफर किया है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भगवान ने सब कुछ दिया है. बहुत वेल्दी नहीं हूँ, लेकिन मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं. मैं Very बहुत good. थैंकफुल हूँ गॉड के प्रति कि उन्होंने मुझे सब कुछ अच्छा दिया. अच्छे पेरेंट्स दिए, अच्छे गुरु दिए, अच्छे टीचर्स दिए, सब कुछ दिया. लेकिन कुछ है जो मिसिंग है, वो Okay. फील करती थी. बहुत लगता था कि पर खुशी तो ये नहीं है, खुशी तो ये नहीं है, आज है कल नहीं है, अभी गुड है फिर बैड हो गया. इस पर आदमी क्या डिपेंड करेगा? तो फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया. मैंने दीक्षा ली, गुरु से दीक्षा ली, और मैं उस ओर आगे बढ़ी. तो इतना प्लेजर मिलने लगा, इतना प्लेजर मिलने लगा कि मैं उसमें सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ. लेकिन मुझे वर्ल्डली लाइफ में तो रहना है ना, मुझे सोसाइटी में मिलना है, सोसाइटी लोगों से बात करनी है. तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि जब मैं बात करती हूँ तो हर आदमी नेगेटिव बात कर रहा है, हर आदमी का एक सेट पैटर्न है, मैं उसमें फिट नहीं हो पाती. फिर मुझे लगता है कि फिर मैं जब जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ, तो मेरा मन खराब हो जाता है. मुझे लगता है वापस मैं मेडिटेशन तो करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अनसोशल हो गई हूँ. और मुझे लगता है कि कोई ऐसा रास्ता होता कि मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर होती, लेकिन मैं सबको साथ लेकर चलती. मैं सोसाइटी से अलग तो नहीं हो सकती हूँ.
बिल्कुल मेरी एक बेटी है, उसकी मैं शादी करूंगी तो मुझे सोसाइटी में तो रहना है, तो मुझे बात भी करनी है, मैं उससे अलूफ नहीं हो सकती हूँ। यस लेकिन मन नहीं लगता सर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उन लोगों के बीच में। ओके मुझे लगता है मैं गुरु की शरण में चली जाऊं, ओके पर मैं गुड। जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करती हूँ, मैं ये संसार छोड़ नहीं सकती हूँ। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कितने टाइम से शुरू किया आपने, ये बताइए। जर्नी तो शुरू हुए 20-25 साल हो गए सर, 20-25 साल ओके बीस गुड। पच्चीस सो साल सो हो लेट मी गए। जस्ट डिस्टिंग्विश समथिंग फॉर यू, करेक्ट। अब मैं जी आपसे पहले एक सवाल पूछूंगा, ठीक है जी, उसके जी बाद हम जी उसको जी समझेंगे। जी तो जी। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और 2 घंटा उसके साथ बैठता हूँ उसके क्लिनिक में और बात करता हूँ, मैं बिल्कुल फिट होता हूँ। और जब मैं वापस आ जाता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ 1 हफ्ते बाद, फिर 2 घंटे वहां बैठता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ, बिल्कुल मजा आ जाता है, बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाती है। वापस आता हूँ घर हम्म, में, फिर बीमार पड़ जाता हूँ। तो ये डॉक्टर अच्छा है या बुरा है? या ये डॉक्टर की दवाई जो हो रही है वो मैं कर रहा हूँ सही या नहीं कर रहा हूँ? डॉक्टर के पास जाके अगर मैं दवाई ले रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि वापस आने के बाद जब मैं दवाई लूँ तो मेरे को वहां भी खुश रहना चाहिए, वहां भी फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, हाँ ऑफ करेक्ट। कोर्स। जी जी। तो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक दैट। If I am doing 1 hour of sadhana in the morning, it should give me so much of power and energy that I can live the rest of the 23 hours absolutely blissful. And I should radiate that love, peace, and joy which I have got during my sadhana to all the people in my life. And my I bliss will get not be, affected. hold on. My bliss will not be dependent on the outside world. My peace of mind is not dependent on the outside world. वो जो But मर्जी I'm करें, affected, sir. वो जो मर्जी I'm करें। affected, sir. हेलो। They get angry. They quarrel with me. They argue with me, हेलो and हेलो I लिसन I get लिसन affected. I get लिसन affected actually, sir. या सो इन दैट केस द स्पिरिचुअलिटी में वो फायर नहीं है या वो एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है कि आप लोगों तक वो रेडिएट कर सके, है ना। इफ आई एम सिटिंग इन मेडिटेशन विद with myself and I'm connected with the divine energies flow through me. Divine energies कौन सी होती हैं? Divine love, divine light, divine wisdom. This flow through me and I radiate that to people in my life. That is spirituality. है कि नहीं? Mm-hmm. तो मैं उतनी एनर्जी लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए उनकी एनर्जी मुझ पे हावी हो रही है। आप कह रहे हैं लोग Right, एंग्री sir. हैं, लोग अपसेट हैं और उनकी नेगेटिव एनर्जी मुझ पे भारी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मेरा कनेक्शन डिवाइन के साथ परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को डिवाइन लाइट नहीं मिल रही, डिवाइन लव नहीं मिल रहा, डिवाइन विजडम नहीं मिल रही और मैं वो लोगों तक नहीं रेडिएट कर रही, इसलिए उनकी एनर्जी मुझ पे भारी पड़ रही है। दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग मी, ये करेक्ट। कैसे होगा सर? तो आपकी साधना, आपकी सत्संग, आपकी सेवा, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। बट अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लेजर और ब्लिस में क्या फर्क है, ठीक है। तो अभी यहाँ से लेके चलते हैं, जो आप पूछ रहे हैं वो टॉपिक शायद, ये क्वेश्चन शायद इस सेशन के एंड में आएगा, करेक्ट, Okay, कि sir. ब्लिस को कैसे प्रैक्टिस करें, Thank you, sir. right? So be in the program, we will get that answer. But right now we are looking at the difference between pleasure and bliss. And what you have said is right. अगर temporary है और अगर वो dependent है तो वो bliss नहीं है, वो pleasure की कैटेगरी में है, क्योंकि वो short lived है, वो temporary है। मेडिटेशन करती हूँ तो मैं शांत हूँ, लेकिन मेडिटेशन जैसे ही बाहर निकलती हूँ मैं परेशान, तो मतलब Mm-hmm. वो मेडिटेशन मुझे सिर्फ प्लेजर दे रहा है, एक एस्केप रूट दे रहा है, मुझे ब्लिस की अनुभूति नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि ब्लिस मेरा बेसिक नेचर है। एज ए सोल माय बेसिक नेचर इज लव, पीस एंड जॉय। सत्य चित आनंद मेरा बेसिक नेचर है। आनंद इज माय नेचर, आनंद इज माय इंट्रिंसिक नेचर। तो ब्लिसफुल होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं ब्लिसफुल हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये मेरे आत्मा का मेरा बेसिक क्वालिटी है। Thank you, sir. तो मेरे माइंड को दूसरों से इम्पैक्ट नहीं होना है, ये अलग बात। ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से डिसाइड होगा कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। बट अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी परफेक्ट है तो यू विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय द पीपल। इनफैक्ट यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द पीपल इन योर लाइफ बाय सेंडिंग देम द राइट एनर्जी। चाहे वो बेटा हो, बच्चा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, नीबर्स हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो बी इन द Right, सेशन sir. एंड यू Yes. सेड यू हैव बीन इनवाइटेड बाय whom?
किशन ठाकुर जी, कौन से श्री ग्रुप में है कृष्ण मैम? ठाकुर, कौन से ग्रुप में है? मस्ट बी हियर ओनली। ओके, नेवर एक्चुअली माइंड। आप आप I कौन know से him. व्हाट्सएप ग्रुप में है? I know nothing, sir. I got a link कृष्ण and I ठक्कर जी, ओके, कृष्ण ठक्कर जी इज हियर, ओके। हाँ, नमस्कार जी, वेलकम। कृष्ण जी, आप कौन से ग्रुप में हैं सर? कहाँ से ज्वाइन किया आपने? ग्रुप का तो पता नहीं है मुझे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप आ गए हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू बी इन द ग्रुप एंड पार्टिसिपेट। एंड जो भी मैं आपको, कनाडा से हूँ। अच्छा कनाडा से हैं आप, ओके, वेलकम। अच्छा, तो we have international participants today. Okay, great, welcome, let's congratulations. Right, so let's have some more people share, and I hope something has opened up for people. Welcome Himanshu, and welcome Krishan Thakkar ji. Whenever you want to share something, you can unmute yourself and share. Right, so who else wants to share? Jyoti ji, Tarun ji. Pleasure and bliss, what is your understanding, what is your take on your experience of pleasure and bliss in your life? And I want to say something, sir. yes, Jyoti ji, go ahead. For me, pleasure is, जैसे अभी मेरे को नाम नहीं याद है जो उन्होंने बोला, इट्स अ टेम्पररी थिंग। मतलब प्लेजर हमें टीवी देख रहे हैं उससे भी मिल सकता है, एंड कुछ काम कर रहे हैं, कोई अपनी हॉबी परस्यू कर रहे हैं उसमें भी मिल सकता है, इस टाइप Yes. से है। ठीक है। एंड ब्लिस इज समथिंग, यू नो, इट्स सॉर्ट ऑफ योर डायरेक्ट कनेक्शन विद द डिवाइन। उस टाइम आपको कुछ भी और नहीं चाहिए, you want, you know, one thing, that is your connection to the divine and your gratitude towards divine, and you're counting your blessings, you are being thankful to the divine. Fantastic, very good, Jyoti ji. That's the right understanding, correct understanding. And when this happens, you will be blissful even when you are not doing meditation, even when you are not doing satsang, even when you are not doing singing any bhajans, you will be in that blissful state. Yes, because you are always connected with the divine. That realization will make you blissful. क्योंकि परमात्मा का नेचर भी सच्चित आनंद है, आत्मा का नेचर भी सच्चित आनंद है। यस और नो? सुना है ना हमने ये? और आत्मा परमात्मा का ही अंश है, सन ऑफ गॉड। आत्मा ही सन ऑफ गॉड, परमात्मा। हाँ, तो पर ब्रह्म के ही हम बच्चे हैं, और उनका नेचर अगर सच्चित आनंद है तो मेरा नेचर भी सच्चित आनंद है, लेकिन शरीर में आते ही मैं ये भूल जाता हूँ, और फिर सोशल कंडीशनिंग से मेरे को कौन सा एक्सपीरियंस होता है? फियर, एंगर, हेट्रेड, एनमी, डाउट, एम्बैरेसमेंट, शेम, गिल्ट। हाँ, ये सब चीजें आ जाती हैं, वायरसेस। दीस आर वायरसेस व्हिच गेट इनटू माय सिस्टम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब सुना है ना हमने, शास्त्रों में बोला गया है, बहुत कथाओं में भी सुना है। किसी भी सत्संग में जाएंगे तो बोलेंगे ये सब विकार हैं हमारे, ये हमारा बेसिक नेचर नहीं है, ये आसुरीय संपत्ति है, देवी संपत्ति नहीं है। जबकि मेरा बेसिक नेचर, आई एम ए डिवाइन सोल, दिव्यता, दिव्यता मेरा बेसिक नेचर है। लव, पीस, पावर, प्यूरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, ये मेरा बेसिक नेचर है। लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस नहीं करता, क्यों? बिकॉज आई एम you can say bombarded with fear, anger, worry, anxiety, doubt, embarrassment, shame, guilt, greed, hurt, blame। ये सब सोसाइटी से मेरी कंडीशनिंग होती रहती है, और कई जन्मों से मेरे ये विकार मेरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे चित्त में आ गए हैं, और इसलिए चित्त की शुद्धि करना ही हमारा परम धर्म है। मेरे चित्त में जो विकार आ गए हैं उनसे अपने आप को फ्री करना ही मेरे जीवन का मकसद है, मेरे जीवन का पर्पस है। एंड साधना का भी, हर स्पिरिचुअल जर्नी में, हर स्पिरिचुअल साधना का पर्पस भी यही है, चित्त की शुद्धि। इसीलिए इसको इतना फोकस हम करते हैं। फिर वो चाहे जिस मर्जी योग मार्ग से आप करें, आप कर्म योग से करें, भक्ति योग से करें, राज योग से करें, या ज्ञान योग से करें, पर चित्त की शुद्धि ही एकमात्र उद्देश्य है। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ माई लाइफ, टू क्लींस माई चित्त ऑफ impurities. Yes, very good. So let's say Jyoti ji, that's good. Anybody else who wants to share? Amit ji, Rakshit ji. Yes, Krishan Thakkar ji, you want to share something? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट।
हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप अनम्यूटेड हैं, बोल सकते हैं। आपने ठीक कहा हाँ जी। कि आनंद जो है, जब डिवाइन परमात्मा के साथ हम जुड़ जाते हैं तो वही ब्लिसफुलनेस है। और परफेक्ट। उसमें वो आत्मा का नेचर है ये। वी आर eternal soul करेक्ट। and part and parcel of Lord Krishna. यस, वेरी गुड, राइट Thank you अंडरस्टैंडिंग, so much. Yeah, बिल्कुल it परफेक्ट is है। very लेट्स nice. एक्नॉलेज कृष्ण ठक्कर जी, वेरी गुड। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर योर व्यू पॉइंट, योर परसेप्शन, and if you disagree with whatever is being said, all the more important that you share your point of view. Yes. Okay, so I think more or less all people are agreeing to it, so let's dive a bit more deep into this. So pleasures जो हैं, as we have now seen, it is temporary, it is dependent on the outside situation, and it is never going to give you eternal, or you can say timeless kind of a joy or happiness, right? So we have to understand more about pleasure, because that is where we are first entanglement into the world. The world is based on duality. हम सब जानते हैं, सुख के साथ दुख आता है। तो अगर हमको सुख का अनुभव करना है तो दुख का अनुभव भी होगा, वरना सुख का अनुभव ही नहीं होगा। अगर हमको डार्कनेस का एक्सपीरियंस है तभी हम लाइट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? राइट राइट का एक्सपीरियंस तभी होगा जब रॉन्ग का एक्सपीरियंस होगा। गुड का एक्सपीरियंस तभी होगा जब बैड का एक्सपीरियंस होगा। प्लेजर का एक्सपीरियंस तभी होगा जब पेन का एक्सपीरियंस होगा। अगर पेन नहीं है तो प्लेजर भी नहीं होगा, डार्कनेस नहीं है तो लाइट भी नहीं होगा। यस, इग्नोरेंस अगर नहीं है तो विजडम भी नहीं होगी, यानी कि नॉलेज भी नहीं होगी। तो हमको समझना है डुअलिटी है। हम जिस पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक में जी रहे हैं, यहाँ पे डुअलिटी ही है। इस डुअलिटी को, के सत्य को समझना और उसके पार चले जाना, तभी हम आनंद की अनुभूति करेंगे। यानी कि प्लेजर और पेन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? अवर माइंड इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट वी रन अवे फ्रॉम पेन एंड वी रन टुवर्ड्स द प्लेजर, राइट और रॉन्ग? है ना? माइंड का नेचर क्या है? वी वांट गुड थिंग्स टू हैपन, वी डोंट वांट बैड थिंग्स टू हैपन। तो हम बैड को पुश अवे करते हैं और गुड को हम अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम उसके पीछे भागते हैं। हम सुख के पीछे भागते हैं और दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, और इसी को माया बोलते हैं, क्योंकि सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे। जिस सिचुएशन से आपको सुख मिल रहा है, एक इवेंट हुआ, एक घटना घटित हुई आपकी लाइफ में, और अगर वो आपके अनुकूल है तो आपको खुशी मिलेगी, और वो अगर प्रतिकूल है तो आपको दुख मिलेगा। यस। अब मैं अगर सुख की इच्छा करूं और दुख की अनिच्छा करूं, दैट मीन्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैप्पीनेस और सुख, प्लेजर, एंड आई एम अवॉइडिंग पेन, तो क्या होगा? I am not accepting life. Then I am not accepting life. I want only the good things to happen. I don't want the bad things to happen. मैं सिर्फ चाहता हूँ मेरे को सुख मिले, मेरे को दुख ना मिले। हे भगवान, मुझे सुख दे दो, मुझे दुख मत दो। तो क्या होगा? ये मैं लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, and that is going to bring me suffering and misery. सुख और दुख क्या है? ये सुख और दुख को हम बोलते हैं प्रारब्ध है। ये, हाँ, सुख और दुख कैसे आ रहे हैं? जीवन की घटना जो घटित हो रही है वो प्रारब्ध है। और प्रारब्ध, अगर अच्छे कर्म किए हैं मैंने तो पुण्य के, उसका पुण्य मुझे मिलता है सुख के रूप में, और अगर मैंने कुछ गलत कर्म करे हैं तो पाप के काउंटिंग होती है और उससे मेरे को दुख मिलता है। तो सुख और दुख क्या है? मेरे ही कर्मों का फल है, प्रारब्ध बन के जो मेरी जिंदगी में आ रहा है। यस, agreed? So now if I can accept that sukh and dukh the way it is coming, then I am accepting life. I have to accept life in totality. I can't accept life in bits and pieces. कि मैं सिर्फ सुख को एक्सेप्ट करूंगा, दुख को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नो, सॉरी, that is not the way life happens. Life happens to you as a complete package. तो जब आत्मा शरीर में आती है, हमको पूरा कंप्लीट पैकेज मिलता है सुख और दुख का।
सुख भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, उन दोनों में अगर मैं समान भाव से जीता हूँ, समता के साथ जीता हूँ, उसके लिए ना मेरे को सुख की इच्छा है, ना मेरे को दुख की अनिच्छा है, तब मैं समता में हूँ, और तब सुख और दुख के परे मैं जाऊंगा, ड्युअलिटी को पार करूंगा, एंड देन आई विल बी लिविंग ए ब्लिसफुल लाइफ। तो आनंद की अनुभूति तभी होगी जब मैं दुख और सुख के सत्य को समझ के समता में रहूं। मैं सुख को भी एक्सेप्ट करूं, दुख को भी एक्सेप्ट करूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे ही प्रारब्ध कर्म हैं जो घटनाओं के फॉर्म में मेरी लाइफ में आ रहे हैं। जब ये सत्य मैं समझ जाऊंगा, तभी मुझे आनंद की अनुभूति होगी, बिकॉज देन आई विल ट्रांसेंड द प्लेजर एंड पेन। सुख और दुख को ट्रांसेंड करूंगा और फिर आनंद में स्थित हो जाऊंगा। यस, तो लेट्स हैव सम मोर शेयरिंग फ्रॉम पीपल। क्या समझ में आया आपको? अपनी लाइफ में देखिए, कोई भी घटना आपके लाइफ में हुई है, अगर आपके बच्चों का जन्म हुआ तो आपको खुशी हुई, और जब आपके बड़े बुजुर्ग शरीर छोड़ गए तो आपको दुख हुआ, है कि नहीं? तो जन्म से सुख मिलता है तो मृत्यु से दुख मिलता है। जॉब मिली आपको तो आपको सुख हुआ, जॉब चली गई, सिचुएशन हो सकती हैं, तो आपको दुख हुआ। तो जो लाइफ में आते वक्त दुख लेके आता है, वो जाते वक्त सुख ले देता है, जैसे कोई बीमारी हो या एक्सीडेंट हो। और कोई अगर अच्छी खबर है, अच्छा इवेंट हो रहा है, प्रमोशन मिली, नौकरी मिली, किसी का जन्म हुआ, शादी हुई, एंगेजमेंट हुई, जो कुछ भी हुआ, ये आते वक्त खुशी दे रहा है, तो रिश्तों के टूटने से, किसी की मृत्यु से या जॉब के जाने से दुख होगा। तो सुख और दुख तो एक पैकेज है, सुख और दुख का पैकेज ही लाइफ है। इन दोनों को एक्सेप्ट करना ही सही तरीके से जीवन जीना है, और इसी के बाद आनंद की अनुभूति होगी। वरना प्लेजर और पेन में घूमते रहेंगे, उसी के बंधन में घूमते रहेंगे, और हमको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलेगी। हम कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। कर्मों के बंधन को पार करने के लिए सुख और दुख में समता लाना जरूरी है। यस, so let's have some more people share. Sushil Jain ji, do you have some point to share? You are having a thoughtful look. मुझे लगा शायद आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। Okay, anybody else? Yes, Sushil ji, go नथिंग ahead. न्यू फ्रॉम माय साइड। जो आपसे सुना है वही शेयर करने लायक है, कि आपने जो कुछ कहा है वही सारी पॉइंट है। Okay. ये स्टिमुली डिपेंड करता है। प्लेजर को लिए कोई ना कोई स्टिमुली चाहिए, कोई ना कोई बाहर की चीज चाहिए। वो Yes. चीज खत्म होते हैं, आपके प्लेजर खत्म है। ब्लिस Yes. कैन बी परमानेंट एंड प्लेजर इज ऑलवेज टेम्पररी। ये जब तक वो सिचुएशन है, समान है, अदर इज अवेलेबल, तब तक आपको प्लेजर है। And in his absence, it's out, khatam. Very good. Like when Very the good. switch off. Whereas bliss is something once you catch it, you can keep it. It's there. And दूसरी बात है, bliss is something very deep, very individual. It's not dependent on anybody else or of the situation. Whereas pleasure is always dependent on the other, the situation, the circumstances, or the Yes. other society. Very good. Perfect understanding. Let's acknowledge Sushil Jain ji. So now I will give some situations and you have to tell me which category it will be. और ये सबकी लाइफ में हुआ होगा। हाँ, आपको बहुत भूख लग रही है, थके हारे बैठे हैं, और फिर आपको आप बहुत देर से ढूंढ रहे हैं कि कहाँ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिले, कहाँ बैठ के मैं खाना खाऊं। हाँ, तो किसी कारणवश आप अपने काम में इतने मशगूल थे कि आप खाना नहीं खा पाए। बहुत भूख लग रही है, अब आपको भूखे हैं, प्यासे हैं, फिर एक रेस्टोरेंट मिलता है और वहां जाते हैं और आप चट के खाना खाते हैं। 56 भोग का खाना मिल गया आपको और आप बिल्कुल तृप्त, फुलफिल्ड, मजा आ गया। अब ये क्या है बताइए? आपको ऐसी अनुभूति कभी हुई ही नहीं खाना खा के, इतना जबरदस्त आपको मजा आया। ये क्या है? ये प्लेजर है या ब्लिस है? Pleasure only. प्लेजर। और कोई बोलना चाहेंगे? पर आपको जीवन में इतनी ज्यादा खुशी कभी नहीं हुई खाना खा के जितनी इस दिन हुई। हाँ, तरुण क्या बोल रहे हैं? So bliss. Okay, so that's okay. That's your understanding. Fine. It could be a very high level of pleasure, but it is still pleasure because it is dependent on the food and it is
टेम्पररी, 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद आपको फिर से भूख लगेगी, या चलो एक दिन बहुत खा लिया आपने, 2 टाइम का खाना खा लिया, तो अगले दिन आपको दोपहर को फिर भूख लगने वाली है। तो ये इटर्नल तो नहीं हो सकता, करेक्ट। पर ये राजसिक है, ये प्लेजर राजसिक है, कैटेगराइज भी कर लेते हैं। क्यों? मजा आया, बहुत मजा आया, किसी को दुख नहीं दिया और बहुत मजा आया, राइट, ये राजसिक है। आपने कोई पार्टी करी, फुल एंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स को बुलाया, खूब जम के पार्टी हुई है। आज के जम के पार्टी का मतलब आप समझते हो, ड्रिंक्स है, नॉनवेज है, सब कुछ है, मजे कर रहे हो आप। तो 2 टाइम चल गया, बुलाया लंच के लिए था, लंच भी हो गया, डिनर भी हो गया, बड़े मजे हुए, ये भी प्लेजर है, ये राजसिक प्लेजर है, ठीक है। राजाओं की तरह ऐश कर रहे हो, बोलते हैं ऐश कर रहे हो, बट ये भी प्लेजर है। अगले 24 घंटे में सब कुछ निकल जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस, आपका होश भी वापस आ जाएंगे, जितने भी आप हाई हो आप डाउन हो जाओगे वापस, दोबारा से भूख लगने लगेगी। तो पेट पूजा के लिए आप जो कुछ भी खा पी रहे हो, ये सब प्लेजर से रिलेटेड है, ये सेंस प्लेजर भी है और फूड का है, तो खाना खा रहे हो, ठीक है। आप बहुत थके हुए हो और आप 10 घंटे सो गए, और जब आप उठे तो मजा आ गया, घोड़े बेच के सोए थे, बहुत ही मजा आया, एसी चल रहा है, अच्छा एटमॉस्फेयर था, बड़ा मजा आया, 10 घंटे कैसे गए पता भी नहीं चला, हाँ, जैसे घोड़े बेच के सो जाते हैं हम। ये क्या है? ये क्या है? ये प्लेजर है, ब्लिस है? क्या बोलोगे? ये सब हमारी लाइफ में हो रहा है ना, मैं इसीलिए एग्जाम्पल यही दे रहा हूँ। अब बताइए ये क्या है, ये प्लेजर है या ब्लिस है? प्लेजर ही है सर। प्लेजर है, Pleasure ही। बिल्कुल क्लियर है, प्लेजर है। डिपेंडेंट है, नींद, बेड है, एसी है, सब कुछ कंडीशन अच्छी है, इसलिए मैं सो रहा हूँ और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, ये कंडीशन है ना। अगर इसी टाइम में मैं बाहर सड़क पे होता और 50 डिग्री की धूप चल रही होती और मैं नहीं सो पा रहा होता, तो मैं ऐसे ऐसे गिरते गिरते गाड़ी चला रहा होता, तो भी हालत खराब हो जाती मेरी, है ना। तो कंडीशन है, ये कंडीशन पे डिपेंडेंट है। और निद्रा, ये तमस है, निद्रा, आलस्य, ये सब जो है ये तमस में आता है, ये तामसिक प्लेजर है। ये 10 घंटे सो गए, 12 घंटे सो गए, 15 घंटे सो गए, आलस्य में आप जी रहे हो या निद्रा कर रहे हो, ये तामसिक है। इसीलिए कुंभकर्ण को, जो रामायण में कुंभकर्ण का कैरेक्टर है, उसको तामसिक कैरेक्टर माना गया है। रावण को राजसिक माना गया है, क्यों? राजा है, उसको जो चाहिए, पावर चाहिए, उसको प्लेजर चाहिए, उसको जो वो बोले वही करना है, बहुत ताकत है, ताकत का प्रदर्शन करता है वो, ये राजसिक है। और विभीषण सात्विक है, हाँ, एक रेफरेंस आगे इसलिए बता दिया मैंने। तो विभीषण को जिस चीज में आनंद मिलता था वो था राम नाम, राम भजन। मेडिटेशन में, मेडिटेशन में, अपने ध्यान में है, सत्संग में है, जो भी है, भगवान के संग में है, संतों के संग में है, राम जी के शरण में है, शरणागत है वो। ये सतोगुण के लक्षण हैं और यहाँ पे आनंद होगा, करेक्ट। राजसिक में आप राजाओं की तरह ऐश करोगे, नृत्य हो रहा है इंद्र के दरबार में, जैसे अप्सराएं नाच रही हैं, ये सब क्या है? ये सब राजसिक है, करेक्ट। शिकार करने चले गए, आखेट करने चले गए, एक्टिविटी, एडवेंचर, एक्शन ओरिएंटेड, ये सब राजसिक प्लेजर है। खाना खाया 56 भोग वाला, ये भी राजसिक है। उसके बाद सो गए, ये तामसिक हो गया, समझ रहे हैं? तो लाइफ में हमारे प्लेजर्स का ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब तक आप सतोगुण में नहीं आएंगे, तब तक आप साधना, सत्संग और सेवा में नहीं जाएंगे, तब तक आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर आपको कोई भी खुशी दे रहा है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई सिचुएशन आपको अगर खुशी दे रही है, वो खुशी कंडीशनल है। चाहे आप उसे हैप्पीनेस बोलें या जॉय बोलें या प्लेजर बोलें, ये टेम्पररी है, ये कंडीशनल है। तो ये इसको प्लेजर की कैटेगरी में ही डालेंगे। जब तक वो इटर्नल है, अनकंडीशनल है, इंडिपेंडेंट है, तभी वो ब्लिस की कैटेगरी में आएगा। एंड नोबडी कैन मेक यू ब्लिसफुल, बिकॉज ब्लिसफुल इज माई नेचर। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी देवी संपदा है, मेरा स्वभाव है, माई इटर्नल, इन माई एसेंस इज ब्लिस, आनंद। क्लियर है? राइट। अब कुछ लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर देने का बड़ा मजा आता है, लोगों को टॉर्चर करने में। हाँ, इमेजिन ए बॉस, ए हिटलर अपने जूनियर्स की ऐसी तैसी करके रखता है, सबको डांटता रहता है, चीखता है, चिल्लाता है,
या आप अपने नौकर को जैसे आप मिसट्रीट करते हो, मारते हो, पीटते हो, कुछ भी करते हो, हाँ, तो एब्यूसिव पेरेंट्स को भी हमने सुना हुआ है। तो सीरियल किलर्स भी होते हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये सब क्या है, ये सैडिस्टिक प्लेजर है इनका। लोगों को मार के, लोगों को दुख दे के इनको मजा आता है, ये तामसिक है। तो हु एंजॉयज गिविंग पेन टू अदर्स knowingly, unknowingly, intentionally or whatever is sadistic pleasure, which is tamasic. So you are able to distinguish तामसिक pleasure क्या होता है, राजसिक क्या होता है और सात्विक क्या होता है। और सात्विक pleasure में हम बोलते हैं ये अनकंडीशनल है और ये इंडिपेंडेंट है और ये प्रभु के चरणों की तरफ जाने वाला है। दैट मीन्स कंप्लीट सरेंडर टू द डिवाइन। then you will experience your real nature of bliss. bliss बाहर है ही नहीं। आप बोलते हो मैं तीर्थ यात्रा पे गया, 4 धाम की यात्रा करके आया या वैष्णो देवी मंदिर होके आया और मैं एकदम खो गया, वो भी टेम्पररी है, क्योंकि वापस आने के बाद तो आप वहीं आ गए ना जहाँ पे थे। लेकिन अगर आपने वो दिल में जोत जगा ली है, यू हैव इन्वोक्ड द डिवाइन इन यू एंड देन यू कम बैक एंड देन यू डू सम ट्रेमेंडस भक्ति, और भक्ति का आपका लेवल बढ़ गया है, तब वो ब्लिस के लेवल पे जाएगा। अंदर जोत जगानी है, बाहर जोत जलाने से कुछ नहीं होगा। मंदिर में जाके दिया नहीं जलाना है, अपने दिल में भगवान की वो जोत जगाए रखनी है, तभी ब्लिस एक्सपीरियंस होगा। तो इसके लिए आपको अपनी साधना, जो भी साधना आप करते हो, उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करना है। सत्संग में जाना है, सत्संग मतलब सत्य का संग या संतों का संग। तो भगवत कथा होती है, राम कथा होती है, भजन कीर्तन होता है, ये सब सत्संग है। इसमें क्या होता है, अपने अंदर दिव्यता जगा रहे हो। अगर दिव्यता जग गई तो आप ब्लिसफुल हो गए, वरना ये बाहर की बाहर ही रह गया। यस, बताइए। सर हम अभी जो हम बात कर रहे हैं वो भी सत्संग ही है। बिल्कुल है, ये सत्संग ही है। और जी, और मैंने खुशी पर, सुख पर बहुत सोचा, तो मुझे लगा दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो मेरे लिए है वो भी एक दिन बाद ही पुराना हो जाता है। बिल्कुल है, मुझे गोल्ड मेडल मिला, सेकंड डे कुछ पूछेगा हाँ मिला था, तीसरे दिन मैं भूल ही जाऊंगी। बिल्कुल। तो ये इतना टेम्पररी है कि मैं एक दिन भगवान के चरण में सारा अर्पित कर दी और मैं बोली आज से मैं कुछ मांगूंगी नहीं आपसे, जो देना है आप दे देना अपनी मर्जी से। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बहुत सर। पावरफुल है ये, जिसे समर्पण, कंप्लीट समर्पण, बहुत बढ़िया। इसी थैंक को यू। बोलते हैं जब आप पूरे शरणागत हो जाते हैं प्रभु के, चाहे वो आप जो भी आपके इष्ट देव हों, राम जी हों, कृष्ण भगवान हों, श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, शिवा हो, माँ दुर्गा है, हनुमान जी हैं, या फिर अलग अलग धर्मों में हम जैसे मानते हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट हो या प्रोफेट हो, जो मर्जी हो, अगर आप उनके शरणागत हो तो जैसे भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, योगक्षेम वहाम्य, जो मेरे शरण में आता है मैं उसके सारे जरूरतों को, सारे बर्डन्स को अपने सर पे लेता हूँ। आई पर्सनली लुक इनटू द सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द नीड। आपकी जो भी नीड है वो मैं पूरी करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ, सारे धर्मों को, लोक धर्म को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। तो ये सब जो है, ये सरेंडर भाव से ही ब्लिस का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सरेंडर भाव से आप भगवान को अपने अंदर जागृत करते हो। When you invoke the divine in you, that is when you will feel blissful. Divine connection के बिना blissful experience possible ही नहीं, क्योंकि you will only get in touch with yourself when you are in touch with the divine. You have to invoke the divine in you and experience the bliss, क्योंकि bliss बाहर है ही नहीं। और जब अंदर एक बार इन्वोक हो गया डिवाइन, तो फिर आप साधना करेंगे, वो भी आप कंटिन्यूस ब्लिस में रहेंगे। चाहे 1 घंटा मेडिटेशन करें, आप 23 घंटे बाकी के पूरे दिन आनंद में रहेंगे। आप 1 घंटा भजन करिए, बाकी 23 घंटे आप आनंद में रहेंगे। करेक्ट। सेवा करिए लोगों की, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा से जितना आपको खुशी मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, वो इटर्नल है, उसका कोई मेजर नहीं है, एंड वो परमानेंट है।
तो प्लेजर और ब्लिस में ये बेसिक डिफरेंस है. Yes. So let's have more people share, and then I will share a लोगों की small. सेवा करने से आपने कहा ब्लिस है, लेकिन ब्लिस कैसे हुआ? ये डिपेंडेंट ऑन द लोगों की सेवा. लोगों ने सेवा लोगों लेनी की बंद कर सेवा दी थी तो क्यों आप कर प्लेजर रहे में. हो? लोगों की सेवा इज ए कॉन्सिक्वेंस. उससे खुशी नहीं मिल रही है आपको. आप कनेक्टेड हो डिवाइन से, इसलिए आप ब्लिसफुल. आप ब्लिसफुल हो और अब आप सेवा कर रहे हो. ठीक है, मैं ब्लिसफुल हूँ सेवा डिवाइन करूँ के तो साथ कनेक्टेड ऑटोमेटिक होके. ब्लिस में हूँ, लेकिन मैं सेवा करूंगा तो ब्लिसफुल हो जाऊंगा. वो चीज नहीं समझ में आ रही है. पहले डिवाइन से कनेक्ट कर. मैं ब्लिसफुल हूँ तो सेवा करूंगा, बड़े भाव से करूंगा, और बिल्कुल. लोग एक्सेप्ट करूंगा तो ब्लिसफुल रहेंगे. यस. लेकिन मैं लोगों की सेवा करूं तो ब्लिसफुल हो जाऊंगा, ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है मेरे. हाँ, वो मत समझिए. I आप ये don't- समझिए कि अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं तभी सेवा करेंगे, क्योंकि निस्वार्थ सेवा करनी है. अगर डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है तो आप अपने स्वार्थ से सेवा करेंगे, लोगों को दिखावे के लिए करेंगे, पाखंड के लिए करेंगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, connect with the divine, invoke the divine in you, then your sadhana will be effective, your satsang will be effective, and your seva will be effective. तब blissful होंगे आप. वरना पाखंड के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना. माला जपते हैं लेकिन माइंड कहीं और होता है. दिया जलाते हैं, ध्यान कहीं और होता है. सत्संग में आते हैं, सारी परेशानियां लेके आते हैं दिमाग में. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सेवा कर रहे हैं खाना पूर्ति के लिए, ताकि लोगों को पता लगे मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूँ. तो ये पाखंड से कुछ नहीं होगा, इससे ब्लिसफुल नहीं होंगे. हाँ, इसमें से थोड़ी सी वाहवा मिल जाएगी, ईगो और स्ट्रांग हो जाएगा. दान पुण्य करेंगे और उसमें बड़ा बड़ा नाम लिखेंगे, ये बेंच डैश 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 ने इस तारीख को अपने लोगों के कल्याण के लिए बहुत दान किया. हाँ, बड़ा बड़ा नाम लिखते हैं उसमें. दान करना ही है तो गुप्त दान करो. ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? दिखावा करना है क्या? तो उससे शांति नहीं मिलेगी, उससे ब्लिस नहीं मिलेगा. इसीलिए पहले डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है, अपने अंदर दिव्यता जगानी है. उसके बाद जो आप साधना करोगे दैट विल बी ब्लिसफुल. जो सत्संग करोगे दैट विल बी ब्लिसफुल. जो सेवा करोगे दैट विल बी ब्लिसफुल, एंड देन इट विल बिकम ए नेचर, वे ऑफ लाइफ. तो आप बेशक ये काम 1-1 घंटा कर रहे हो, बाकी के 23 घंटे आप आनंद में ही रहें. यस सुशील जैन जी, नाउ इट्स क्लियर. हाँ जी. Perfect. Very good. Let's acknowledge Sushil Jain ji. Yes, Himanshu, you have raised your hand. Go ahead. Yes, Himanshu, go ahead. आप आवाज नहीं आ रही है. या हाँ. अब क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी. Go ahead. ओके. मैं क्वेश्चन है, आपने बोला बिलीव मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करो. नाउ माय क्वेश्चन इज कि जितने भी अगर निस्वार्थ भाव है तो मनी क्यों पे? एक सेकंड, दैट हैज आवाज बीन क्रिएटिंग. क्लियर नहीं हो रहा. निस्वार्थ सेवा क्या बोला आपने? निस्वार्थ सेवा इज इक्वल टू मनी. यू विल नॉट चार्ज मनी. नो, इट्स नॉट दैट वे. निस्वार्थ सेवा मीन्स अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है. ये नहीं कि आई विल विन एंड यू विल लूज. इट विल बी ए विन विन. मैं भी जीतूं, आप भी जीतो, है ना. इट्स जस्ट लाइक ए नोबल डीड डन बाय ए डॉक्टर और ए टीचर. बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य क्रिएट कर रहे हैं, साथ साथ में अपनी फीस भी ले रहे हैं. निस्वार्थ सेवा का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं लूंगा. उसका ये मतलब है कि अपने स्वार्थ. लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस कमिंग, प्लीज गो ऑन म्यूट. या निस्वार्थ सेवा का मतलब है अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. निजी स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा. जो करूंगा समाज के हित के लिए करूंगा, उसमें मेरा भी भला हो रहा है. इट्स ओके. इनफैक्ट आई वुड से यू कीप योरसेल्फ ऑन द नंबर 1 लिस्ट. लिस्ट में सबसे पहले अपना नाम लिखो. करेक्ट. अदरवाइज आज की डेट में भिक्षाम देही वाला कंसेप्ट नहीं चलता ना. हाँ, तो यू हैव टू अर्न योर मनी, यू हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड. हम गृहस्थ में हैं, हमको भी एक लग्जूरियस लाइफ जीना है. बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, माँ भी चाहिए, सब चाहिए, है ना. तो वी नीड टू एंजॉय गुड रिलेशनशिप, we need to enjoy good health, we need to enjoy good wealth. It will only happen, but that should not be that should be a byproduct, not the main focus. Main focus is how can I serve people, and when you serve people, when you are doing the divine work, the divine will take care of you. Clear hai Himanshu? Very good.
perfect. Let's acknowledge Himanshu. Yes. Who else? तो ये अगर किसी को डाउट है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने का मतलब है मैं पैसे नहीं ले सकता, तो dump that idea. You should charge your fees. You should take your money what is worth. डॉक्टर्स अपनी फीस लेते हैं कि नहीं? टीचर्स अपनी फीस लेते हैं कि नहीं? उनको भी तो अपना घर चलाना है. तो अगर आप लाइफ कोच हैं, अगर आप हीलर हैं, मैं खुद स्पिरिचुअल हीलर हूँ, आई टेक एनर्जी एक्सचेंज बिकॉज नथिंग हैपेंस फॉर फ्री, राइट? द यूनिवर्स डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज फ्री. हेलो, एम आई ऑडिबल? सब लोग फ्रीज हो गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा नेटवर्क चल रहा है नहीं चल रहा है. नहीं, यू ऑडिबल, क्वाइट क्लियर. वेरी गुड, थैंक यू. सो यू अंडरस्टैंड. तो ये गलत धारणा में नहीं रहना है कि स्पिरिचुअल लोग गरीबी में जीते हैं. क्यों गरीबी में जीते हैं? हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट, अबंडेंस इज ऑल्सो माई बर्थ राइट. मैं पूरे भरमार में जीऊंगा खुशियों के, मैं पूरे भरमार में जीऊंगा वेल्थ के. आई विल लिव ए लग्जूरियस लाइफ एंड आई विल सर्व पीपल. ठीक है. तो धर्म का पालन करते हुए, देखो इंसान के लिए 4 पुरुषार्थ भी तो बोले हुए हैं ना हमारे संस्कारों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया ना 4 पुरुषार्थ. कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. धर्म का पालन करते हुए, सत्य और धर्म के रास्ते पे चलते हुए मैं धन का अर्जन करूंगा, अपनी कामनाओं की पूर्ति करूंगा. अर्थ इज वेल्थ एक्यूमुलेशन, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस. काम इज कामनाओं की पूर्ति. तो काम वासना, अपने गृहस्थ परिवार में हो तो अपने परिवार के साथ, अपनी पार्टनर के साथ, पति पत्नी के साथ. तो मैरिज, यू नीड टू एंजॉय दैट फैमिली लाइफ. अपने कामनाओं की पूर्ति करिए, एंजॉय. घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, पैसे चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, ये सब चाहिए आपको, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है. यस, तो ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट. तो यू नीड वेल्थ. अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए, अर्थ, काम, पर धर्म का पालन करते हुए. धर्म का पालन करने का मतलब है अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए आप कार्य करेंगे और फिर अपने धर्म का पालन करेंगे. और जब सही टाइम आएगा तो वानप्रस्थ और उसके बाद मोक्ष, संन्यास. क्लियर है? दैट इज हाउ ए जीवन मुक्त लिव्स हिज लाइफ. सत्य और धर्म के रास्ते पे पहले खुद को जगाना है और फिर लोगों को जगाना है. यही सबसे बड़ा मानव कल्याण का कर्म है. यस, लेट्स हैव मोर पीपल शेयर. अमित जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? वी आर रीचिंग द closing time now. Galaxy A23. Anything you want to share, Tarun? If you are not traveling, you should switch on your video and share. Bajinder ji, Jyoti ji, anything else that you want to share? Yes. कौन बोलना चाहेंगे जिसने अभी तक शेयर नहीं किया? Let's also look at another aspect of temporary happiness. अपनी कामनाओं की पूर्ति अगर हम कर रहे हैं, जो अभी हिमांशु ने अच्छा पॉइंट उठाया कि निस्वार्थ सेवा का मतलब क्या, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करूं. तो अपनी कामनाओं की अगर हम पूर्ति कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं कि मैं जीत जाऊं, बाकी सब जैसे बोलते हैं भाड़ में जाए. हाँ, मेरे को फायदा हो जाए, बाकियों का नुकसान होता है तो होने दो, आई डोंट केयर. ये क्या है? ये सैडिस्टिक प्लेजर है. तो कामनाओं की पूर्ति के लिए भी हम लोगों को दुख दे सकते हैं. तो हमको अपनी कामनाओं की पूर्ति भी सत्य और धर्म के रास्ते पे चलते हुए करना है, ताकि लोगों का भला हो और मेरा भी भला हो. तब वो आपको आनंद का अनुभव देगा, वरना वो प्लेजर रिलेटेड हो जाएगा, वेरी शॉर्ट टर्म. और अगर आप लोगों को दुख देके आप पैसा कमा रहे हो या अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हो, तो वो प्लेजर शॉर्ट लिव्ड होगा, बड़ी जल्दी वो सुख दुख में बदल जाएगा. क्यों? लोगों की बददुआएं लेंगी. आप गलत काम करके पैसा कमा रहे हो, किसी को धोखा देके पैसा कमा रहे हो, तो क्या होगा? उस पैसे में एनर्जी कौन सी है? लोगों की बददुआएं हैं, है कि नहीं?
मैं अगर किसी को धोखा दूं, उससे पैसे छीन लूं, उसको बेवकूफ बना दूं और मैंने फ्रॉड कर लिया और पैसे छीन लिए और किसी को बहुत बड़ा नुकसान दे दिया, वो डिप्रेशन में चला गया, हो सकता है उसके फैमिली सड़क पे आ जाए या वो सुसाइड कर ले, कुछ और कर ले। अब वो पैसा जो मैंने कमाया गलत तरीके से, वो मुझे क्या सुख देगा? उसमें लोगों की बद्दुआएं हैं, उसमें जिसको मैंने बर्बाद कर दिया उसकी बद्दुआएं हैं, क्या मेरे को वो पैसा हजम होगा? खुशी देगी? नहीं, वो बीमारी लाएगी, वो घर में रिश्तों को तोड़ेगी, क्योंकि उस पैसे में बदनसीबी है, बद्दुआएं हैं। अंडरस्टैंड दैट। अच्छे कर्म करके, लोगों की दुआएं लेके अगर आप पैसा कमा रहे हो तो वो आपको पैसा भी मिलेगा और आपको दुआएं भी मिलेंगी, यानी कि सुख और संपत्ति भी आएगी और आपकी अच्छी सेहत भी होगी, अच्छा पैसा भी होगा, अच्छे रिश्ते भी। इसलिए अपने कर्मों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में आपको लॉन्ग टर्म पेन ना मिले। और प्लेजर और पेन के बंधन से जब आप फ्री हो जाओगे, तब अद्वैत के हिसाब से आप नॉन डुअलिस्टिक हो जाओगे और आनंद में स्थित हो जाओगे। जब तक सुख और दुख में बंधे हुए हो, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जब तक प्लेजर और पेन में फंसे हुए हो, ब्लिस की एक्सपीरियंस नहीं होगा। प्लेजर और पेन के बंधन से बाहर निकलना ही आनंद की अनुभूति है। तो ना सुख की चिंता, ना सुख की इच्छा, ना दुख की चिंता। जब इन दोनों में आप समता में आ जाओगे, तब आप इन दोनों को पार करके आनंद की अनुभूति में जाओ। दैट इज द जर्नी ऑफ डुअलिटी टू नॉन डुअलिटी। द्वैत से अद्वैत की ओर आप जाओगे और यही देव भाव से आत्म भाव की तरफ जाओगे। पिछले सेशन में भी मैंने कहा था, एक हमारी प्रेयर है, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसमें एक ही चीज बोली जा रही, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ओ फादर मदर ऑफ द यूनिवर्स, प्लीज लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द ट्रुथ, प्लीज लीड मी फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट, प्लीज लीड मी फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी। तीनों का भाव एक ही है, मुझे देव भाव से आत्म भाव की तरफ ले चलो, मुझे प्लेजर से ब्लिस की तरफ ले चलो, डुअलिटी से नॉन डुअलिटी की तरफ ले चलो। करेक्ट? So this is the gist of the program and this is the basic essence of spirituality. So anybody has any question? Otherwise we will close the session today. Yes, Tarun, go ahead. Yes. तो जैसे मैम ने भी कहा था कि जब वो भजन कीर्तन में जाते हैं या गुरु शरण में जाते हैं, जो आपने डॉक्टर वाली एग्जांपल दी थी उस समय स्टार्टिंग में, तो वो उस समय की जो स्टेट है, उस समय तो आप सुख और दुख दोनों से परे हो, तो क्या उस स्टेट को हम ब्लिसफुल स्टेट मान सकते हैं या नहीं मान सकते, या हाई लेवल ऑफ प्लेजर है वो तो प्लेजर ही है ना, बिल्कुल डिपेंडेंट है। डॉक्टर सामने है इसलिए मैं शांत हूँ, डॉक्टर के जाते ही मैं घर पहुंचता हूँ, फिर मैं परेशान हो जाता हूँ, तो वो ब्लिसफुल नहीं है ना। अगर मैं पर उस हाँ बोलिए। क्वेश्चन है कि उस क्षण में आप उस क्षण को पूरा एंजॉय कर रहे हो। मान लो वो डॉक्टर छोड़ो, वो अकेले बैठ के कहीं किसी, जैसे अमित जी कई बार साधना कर रहे होते हैं अकेले बैठ के, और उस साधना के समय वो बिल्कुल एक अलग पीस में होते हैं ना, तो उस क्षण को क्या उस ब्लिसफुल माना जाएगा या वो भी एक हाई लेवल ऑफ प्लेजर काउंट किया जाएगा? ब्लिस आप किसको बोलते हो? 24 जहाँ घंटे पे का अगर हम आदमी टाइम स्लॉट लें, ब्लिसफुल इज व्हेन यू आर ब्लिसफुल 24 आवर्स अ डे, एवरी डे। अच्छा, मतलब अगर आप उस क्षण में, हम कई बार कहते हैं कि लिव इन द मोमेंट, क्या उस क्षण में जैसे अभी आपसे बात करते हुए ना किसी बात का दुख है ना किसी बात का सुख है, बस एक क्यूरियोसिटी है, वो अभी क्योंकि आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए क्यूरियोसिटी वाली बात कर रहा हूँ, वरना साइलेंट बैठा रहता तो शायद इसका मजा भी उतना ही, आनंद उतना ही आ रहा होता सत्संग का, और उसका मतलब कोई दुख भी नहीं है और उसका सुख भी नहीं है, बस आनंद वाली फीलिंग है। वेरी तो गुड, बहुत इस बढ़िया। स्टेट को क्या बोलेंगे? ये ब्लिसफुल है अगर वो पूरा टाइम रहे। सी व्हेन आई एम मेडिटेटिंग फॉर 1 hour आई एम ब्लिसफुल, ठीक है, बट इफ दैट ब्लिस doesn't stay for the next 23 hours, then that is not bliss. वो फिर एस्केपिस्ट रूट हो गया, 1 घंटा शांत बैठ गया, दरवाजा बंद करके, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया,
वाइफ ने ताना नहीं मारा, कोई फोन कॉल नहीं आया, इसलिए मैं ब्लिसफुल हूँ। लेकिन जैसे ही कोई मेरे से बात करेगा मैं फिर अपसेट हो जाऊंगा, तो फिर वो ब्लिसफुल नहीं है। ब्लिसफुल हैज टू बी 24 आवर्स ए डे, एवरी डे। अच्छा, 1 घंटा मैं इससे मेडिटेशन, थोड़ा एक मिनट, 1 घंटा मेडिटेशन should give me 23 more hours of peace. 1 hour of satsang should give me 23 hours more of peace every day. ठीक है, Then it तो is मैं इसे blissful. थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ। हम्म, जैसे हमने 1 घंटा मेडिटेशन किया, हम्म, 23 घंटे हमारे पास बचे हैं। हम्म, उसमें से मैं जब ऑफिस गया, सबके साथ अच्छे से बात हुई, बाहर मीटिंग के लिए गया, अच्छे से बात हुई, हम्म, वापस आते समय गाड़ी कुछ पंचर हो गई, सपोज हम्म, करो। हम्म, उस समय मेरे को उस क्षणों के लिए लगा कि यार क्या हो गया मेरे साथ, और एक शायद 10 मिनट, 5 मिनट या शायद 10 सेकंड, हम्म। पर उस 10 सेकंड के बाद मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि यार क्या सुख दुख में जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, Very good, जो होगा अच्छे के लिए होगा। very good. तो उसके बाद मैं फिर वापस उस रिवर्स मोड में आ गया। चाहे वो 10 सेकंड लगे, चाहे मेरे को वो 1 घंटा लगा, ठीक वो है, 1 घंटे के ड्यूरेशन अगर निकाल दे और उसके बाद मैं फिर उस स्टेट में आ गया हूँ, very good. तो क्या मतलब फिर। Yeah, that is blissful, but you are still in work in progress. ठीक है, हम सब वर्क इन प्रोग्रेस ही हैं। कौन अपसेट नहीं होता है हाँ, यहाँ पे? कोई एक जना बता दे जो अपसेट नहीं होता है लाइफ में। कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा, बट देन यू कैन बाउंस बैक वेरी 100%। फास्ट, राइट? यस। अगर आपको अचानक पता लगे मेरे को अभी 5 लाख का नुकसान हो गया, एक झटका तो लगेगा, फिर लगेगा चलो कोई बात नहीं, 5 गए हैं 10 आ जाएंगे, वो बात की बात है। 2 मिनट के लिए तो झटका लगा, है ना? तो बाउंस बैक करना जरूरी है। दिस विल गिव यू द बैलेंस इन लाइफ। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। आप चलो 1 घंटा मान लो, मैं 1 मिनट की बात नहीं कर रहा, 1 घंटा आप अपसेट हुए, 1 घंटे की मेडिटेशन से आप 22 घंटे तो पॉजिटिव रहे, 22 घंटे तो ब्लिसफुल रहे, 1 घंटे गड़बड़ हुआ है, तो वर्क इन प्रोग्रेस है अभी हम। ठीक है, अच्छा, हाँ, ठीक। बहुत अच्छा अगर प्रोग्रेस मैं है। इसलिए तो शायद मैं वो जो खाना खाते हुए बात बोली ना मैंने, तो उस समय एक्चुअली में खाना भी खा रहा था, तो मैं उस खाने को उतना ही इंजॉय कर रहा था। मैं चाहे इतना थका हुआ नहीं था, हारा हुआ नहीं था। जब आपका क्वेश्चन आया तो एग्जैक्टली वो खाने उस समय खा रहा था और वो चीज चल रही थी, तो इसलिए मेरे को वो फीलिंग उस समय ब्लिस वाली थी, तो मैंने वही आंसर दिया। बट दैट इज प्लेजर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जो टेम्परेरी है और जो कंडीशनल है वो प्लेजर है। ठीक है, जो ठीक। एवरलास्टिंग है और अनकंडीशनल है वो ब्लिस है। अब वो 24 घंटे नहीं है, ठीक। 22 घंटे है, दैट इज ऑल्सो गुड प्रोग्रेस। तो आप अपना रोज ठीक। 1 घंटा साधना करिए या 2 घंटा साधना करिए, और वो अगर आपके 22 घंटे तक आपको ब्लिसफुल बनाता है, इट इज गुड। इवन 20 घंटे बनाता है, इट इज गुड। 2 घंटे हैं, थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस है, कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां पे, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दैट इज सो दैट इज हाउ यू गॉड लुक एट शेयर इट। क्लैरिटी। दैट इज अ वेरी गुड प्रोग्रेस अगर हो रहा है तो। पर नॉर्मली क्या होता है, लोग एक बार अपसेट आ रहा हूँ जी मैम, 1 सेकंड आ रहा हूँ। तो लोग अपसेट होते हैं, 5 मिनट की बात होती है, 24 घंटे अपसेट रहते हैं। उस 24 घंटे में फिर कोई पांच अब मिनट की बात हो जाती है, फिर अगले 1 हफ्ते के लिए अपसेट हो जाते हैं। दे हैव एडवांस बुकिंग ऑफ गेटिंग अपसेट मंथ आफ्टर मंथ। उनका अपसेट हाँ जी, खत्म ही नहीं बिल्कुल होता ठीक। है। एक अपसेट खत्म होने से बिल्कुल पहले ठीक। दूसरा अपसेट आ जाता है। नाउ दे, बैकलॉग वाला ही खत्म नहीं हुआ, परसों वाला अपसेट खत्म नहीं हुआ, अब नए 1 हफ्ते की बुकिंग हो गई है, एडवांस बुकिंग। ये खतरनाक है। यहाँ पे डिप्रेशन होगा, हाँ, यहाँ हार्ट अटैक होगा, यहाँ ब्रेन स्ट्रोक होगा, यहाँ, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, डराना नहीं चाह रहा लोगों को, बट दिस इज हाउ पीपल एक्चुअली फॉल सिक। स्ट्रेस और नहीं नहीं, डिप्रेशन बिल्कुल में सही। तभी जाते हैं जब व्हेन यू आर नॉट इन बैलेंस, है ना? राइट। तो प्लेजर से हटके जब तक हम ब्लिस में नहीं जाएंगे, तब तक हमारी लाइफ मिजरेबल ही रहेगी। और ब्लिस के लिए मैं बहुत अच्छा एक वर्ड, मैंने वर्ड ढूंढा था, कहीं मेरे को मिला था, इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन टू एक्सपीरियंस ब्लिस ऑल द टाइम। तो डिसिप्लिन में आ जाइए, योर लाइफ विल टेक ऑफ। ग्रेट। बी कमिटेड दैट आई विल लिव ए डिसिप्लिन्ड लाइफ एंड एक्सपीरियंस ब्लिस एवरी मोमेंट। उसके लिए मेरे को साधना 1 घंटे से 2 घंटे करना पड़े, मैं करूंगा, पर मेरे को 24 घंटे ब्लिसफुल रहना है। ये कमिटमेंट अगर होगी, एंड देन कनेक्ट विद द डिवाइन, इन्वोक द डिवाइन इन यू, यू विल बी ब्लिसफुल ऑल द टाइम। फिर 1-2 घंटे में जो अपसेट हो रहा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। यस, वेरी गुड तरुण, गुड गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, लेट्स एक्नॉलेज तरुण। यस मैम, कमिंग टू यू नाउ। यस, you wanted to share something, go ahead. I wanted to ask one question, sir. Hmm. 3 or 4 times you told us kindly that हमें देवत्व से मनुष्यत्व की ओर जाना है। तो देवत्व से मनुष्यत्व नहीं, की ओर कि मनुष्यत्व से देवत्व की ओर? देवत से नहीं, पहले पशुता है, फर्स्ट लेवल इज पशुता, राइट? पशुता।
Pashuta is, you know, everybody is in, I mean, the human being can be in tamas, right? Sadistic pleasure हो गया, सोता रहेगा, हाँ, murder हो रहा है, kidnapping हो रही है, all the illegal work that they are doing, so all that is Pashuta, correct? Then you come to Manavta. Manavta is basically अच्छा आदमी है, साधक बेशक ना हो पर अच्छा आदमी है, किसी का बुरा नहीं करता, अपने काम से काम मतलब रखता है, अपनी आराम से जिंदगी जी रहा है, कोई साधक नहीं है, दैट मीन्स कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ रहा, वो मानवता के लेवल पे खुश है, साफ सुथरी जिंदगी जी रहा है, अपने अपने माँ बाप, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ एक आराम से जिंदगी जी रहा है, ये मानवता है, ना बुरे कर्म कर रहा है ना बहुत अच्छे कर रहा है। वहां से उठ के वो आता है देवता में। देवता की कैटेगरी है, दे आर प्रोवाइडर्स। Providers means they could be business tycoons who are giving employability to people, correct? They could be somebody like what जो भी आप समझ सकते हो, तो they are life coaches or they are contributing to people, they are healers and they are making others life easy. तो ये देवता की कैटेगरी हुई, they are providers, they are serving people, right? And then you come to Divyata, they are the enlightened ones, they are the masters, correct? तो कैटेगरी क्या है कॉन्शियसनेस की? पशुता से, मानवता से, देवता से, दिव्यता। इन शॉर्ट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट एज तमस टू रजस। रजस के दो कैटेगरीज हैं, एंड देन आफ्टर दैट टू सत्वा, एंड देन टू निर्गुण। तो निर्गुण में वो एनलाइटेंड पीपल आ जाएंगे, मास्टर्स। तमस, रजस एंड सत्वा, सात्विक। 3 gunas, you can just do a Google search, you will get the whole book on that, huh? तमस, रजस एंड सत्व, आई कॉल दैट नॉर्मली TRS। तो आपकी TRS परसेंटेज आपका बताती है आपकी कॉन्शियसनेस किस लेवल पे है। तो तमस से निकल के रजस में आना है, रजस से निकल के सत्वा में जाना है, सत्वा से निकल के निर्गुण होना है। तो निर्गुण में तो आप अवतार बन जाओगे, तो अभी सत्वा में ही आ जाएं तो हम इस लाइफ टाइम में बहुत अच्छा काम कर लेंगे। यस, थैंक यू सर। हाँ, आपने मुझे एक चीज से परिचय कराया। मेरा ये नेचर था कि मेरा आई एम नॉट मनी माइंडेड दैट वे, तो मेरी हानि हो जाती है, आई डोंट केयर फॉर दैट। बट मेरे से कोई अगर खराब से बात करता है, मतलब इल ट्रीट करता है, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। तो मैं उस पर तो गुस्सा नहीं उतारती कि मैं जानती हूँ उसको मैं सुधार नहीं सकती, तो मैं अंदर अंदर बहुत दुखी हो जाती हूँ। अभी जो आपने कहा कि एक तकलीफ होगी फिर उसके बाद वो चलता रहेगा प्रोलॉन्ग, ये होता है मेरे साथ, और मैं सच में बीमार पड़ने लगी। तो फिर डॉक्टर्स की मेडिसिन खाने से अच्छा है कि मैं भगवान की शरण में जाऊं। बिल्कुल। तो अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप इतना पावर आ जाएगा आपके अंदर कि कोई आपको हर्ट कर ही नहीं सकता। हर्ट कौन हो रहा है? आपका शरीर हर्ट नहीं हो रहा, आपका ईगो हर्ट हो रहा है। मुझे क्या हर्ट करना सिर्फ चाहिए ईगो उसमें? होता है। ईगो को साइड में रखो और डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ। ईगो इज देव भाव, सो बॉडी कॉन्शियसनेस। डिवाइन के साथ है सोल कॉन्शियसनेस। डिवाइन से कनेक्ट करते ही सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओगे आप, ईगो कॉन्शियसनेस छूट जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना, पूरा प्रेयर हमारा क्या है? देव भाव से आत्म भाव में जाना है, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो हर्ट कौन हो रहा है? ईगो हो रहा है। ईगो कहाँ है? देव भाव में है। आत्म भाव में तो ईगो है ही नहीं ना। आत्म भाव में तो सिर्फ भगवान है, आप भगवान की शरण में हो। उस समय क्या करना चाहिए? साधना, पर्टिकुलर पॉइंट। साधना। अपने प्रेयर को फोकस करो, अपने गुरु मंत्र पे फोकस करो, भगवान के स्वरूप को याद करो। अगर आप भगवान कृष्ण के भक्ति कर रहे हो तो गोपाल कृष्ण को याद करो। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक समय पे एक ही थॉट आ सकता है, 2 थॉट आ ही नहीं सकते आपको। थैंक यू सर, तो भगवान का स्वरूप सामने लाइए और गुरु मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सबसे आसान है। यस सर, थैंक यू सर। और सबको दुआएं दो, सबको दुआएं दीजिए कि सब तुम भी जाग जाओ, मैं भी जाग जाऊं, सब खुशी से राजी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करें। यस, perfect. So we have 8 minutes over time. I will close the session now. Last and final call. Anybody wants to share anything? Kapil ji, welcome. कुछ बोलना चाहेंगे? अमित जी। Vande Mataram. Sorry, Yes. I could not join the entire session. Last leg में ही मैं join कर पाया because I was out with the family. No And problem, sir. last leg में भी जो अमृत मिला है वो बहुत ही valuable है. I thank you from the bottom of my heart for this wonderful session. Thank you, sir. Welcome.
Amit ji, last and final call from your side. Anything you want to share? Otherwise, we close the session today. Okay, I think Amit ji has got busy now. Right, so with this, we come to the end of the session. And those who have come here for the first time, leave your contact number in the chat box. We will get in touch with you. And we will add you in the group, our DHB group, where you can see the posts, daily posts, and you will also get a lot of activities which are happening there. You will also get the link to join. Every Wednesday, we have this program with new topics. So that is the message for you. So leave your phone number in the chat box. We will get in touch with you. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. Enjoy a great week. And we come back again next Wednesday. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take care. Good night. Bye-bye. सभी को आत्मीय नमन. Thank you. Pranam. Bye-bye.